session which we actually organize with a career development workshop, which we actually organize with Mr. Siddharth Jain. Our today's speaker, Mr. Siddharth Jain, is perhaps someone who doesn't need any introduction, but formally I still have to make an attempt to give a part. After his MBA, he worked as regional sales manager in FMCG sector. In contemporary, he is working as a personality development trainer with an experience of 15 years in the field of training and character making. Please welcome an educationist, PDP trainer, motivational speaker, Mr. Siddharth Jain. Hi, Siddharth. Welcome Hello, you. ma'am. Hope everyone is well in your family, and it has always been a pleasure to be at WIPS and to address the student of WIPS. And I would thank Professor Mishra for giving me this wonderful opportunity to address the WIPSians. And really, it's a great pleasure for me. Okay, so guys, many of you had seen a lot of videos on YouTube, on Facebook, which I had posted related to the a kind of a PDP session, a kind of a character making session. We have a lot of videos with Sandeep Maheshwari. We have a lot of videos with Sonu Sharma. So these are the life coaches. These are the mentors. So मेरा बड़ा एक सिंपल सा फंडा रहता है जब भी मैं विप्स में आता हूँ यहाँ का कैंपस देख के एक्चुअली आई गॉट डिलाइटेड and sitting in front of the cameras and sitting inside that the studio, it's amazing. I'd visited number of places, I'd visited a lot of newsrooms, but जो experience मुझे यहाँ मिलता है वो कहीं नहीं मिलता, and that's something which I like in the at WIPS campus, their hospitality. It's great, it's amazing. So without not wasting much time on it, let's start with today's thought process. And okay, so I personally feel whosoever is be a part of this session, they are a very good, they are awesome, and today, trust me, you are going to take out something very important aspect of your life. तो आज कुछ एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे, एंड अल्टीमेटली हम कोई भी प्रोग्राम, कोई भी अपने करियर के बारे में बात करते हैं, वी ऑलवेज लुक फॉर अ वन सिंगल वर्ड, एंड दैट्स ऑलवेज अ क्वेरी ऑफ अ स्टूडेंट, एंड दैट्स व्हाट वी कॉल्ड अ प्लेसमेंट. हर एक को नौकरी चाहिए, राइट हर एक को नौकरी चाहिए, हर एक को आगे ग्रो करना है लाइफ में, बहुत अच्छा परफॉर्म करना है और एक दिन में ही सीईओ एमडी बन के निकलना है. ये एक एक ट्रांसपेरेंट एस्पिरेशन है फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स की I wanted to become a CEO without doing any hard work or without spending much more time like your parents had done. They had spent a huge number of life, like 30 years, 40 years, and then they reach to that position. But हम क्या expect करते हैं? हम always we expect कि नहीं, shortcut. So we always believe on the shortcut point. कि आज ग्रेजुएशन करके निकले एंड वी आर ऑन जॉब, हम अपनी कंपनी खोल लेंगे एंड वी स्टार्ट रॉकिंग इन द इंडस्ट्री. सो गाइज ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है. बहुत प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से आज चलेंगे, बहुत लाइफ के फेसेस को हम अंदर जाएंगे, समझेंगे. लाइफ के कुछ ऐसे पहलू हैं जो आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है. एंड बाई बीइंग इनटू दैट प्रोफेशन फ्रॉम ऑलमोस्ट 14 to 15 ईयर्स, मैं हमेशा एक चीज़ पे हमेशा फोकस रहता है. एंड being at WIPS, again, I know that kind of a crowd that is available, that got admitted at WIPS. They are quite enriched in their communication skills. The faculty at WIPS you won't found anywhere. Trust me, they are very experienced. In fact, while talking to them in last so many years, I had learned many more things from them. And of course, that's something of process which go on and on and on, and that is something which you need to get implemented in your lifestyle. तो आज इसी पे बात करेंगे. मैं पहले स्टार्ट करता हूँ आपको प्लेसमेंट से. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी लाइफ का, हमारी क्वालिफिकेशन का, एंड ट्रस्ट मी, नो वन कैन अश्योर दिस प्लेसमेंट. कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी कंपनी, कोई भी रिक्रूटर आपको कुछ भी वर्ड गारंटी नहीं कर सकता. सो गारंटी वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता. It's all about the hard work. It's all about the zeal. It's all about the spark in your personality. वो स्पार्क कहाँ से आता है? पहले हम समझेंगे स्पार्क कहाँ से आता है. हर दिन हमें एक नई चीज़ सीखने को मिलती है.
So come up with that zeal. 90% of the people believe हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया, राइट ये हमारे साथ ही क्यों हुआ है, कोविड की सिचुएशन हमारे टाइम पर ही क्यों आई है, हमको प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं मिल पाया, क्यों नहीं मिल पाया, कोविड आ गया। हमारे साथ ही क्यों, हमारे से पहले वाले जो बैच पास आउट हुए थे उनके साथ तो ऐसा नहीं हुआ, उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। एंड ट्रस्ट मी, ये वाली जो प्रॉब्लम है ये खाली एक इंडिविजुअल पर्सन की प्रॉब्लम नहीं है, ये ओवरऑल इट्स अ परसेप्शन, इट्स अ परसेप्शन ऑफ द होल एजुकेशन सिस्टम। आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में चले जाएं, आप आईएम्स में चले जाइए, आप आईआईटीज में चले जाइए, आप एनएसआईटी में चले जाइए, आप एनआईटी में चले जाइए, या आप गूगल के किसी एम्प्लॉय से बात कर लें, हर किसी पर्सन की एक ही परसेप्शन है, इन 2 साल में हमारे साथ ही ऐसा क्यों। ये एक ऐसा थॉट प्रोसेस बन गया एंड दैट्स अ वेरी नेगेटिव एस्पेक्ट। और ये हमने अपनी लाइफ में अब वी हैड ऑलरेडी मेक अ पार्ट कि कोविड इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, वी नीड टू लिव विद दैट, बट वी डोंट वांट इट टू मोल्ड आवरसेल्फ। हम अपने आप में कोई चेंज नहीं लाएंगे, बट हमें रोएंगे। और रोएंगे क्यों, कोविड आ गया जी इसलिए रोएंगे, प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं मिला इसलिए रोएंगे, कॉलेज के 3 साल का था एंजॉय करने थे, 1 साल ही एंजॉय कर पाए, 2 साल नहीं एंजॉय कर पाए, ये भी प्रॉब्लम है। सो पॉइंट है, प्रॉब्लम कहाँ नहीं है, प्रॉब्लम किसको नहीं है, हर एक के पास एक प्रॉब्लम है, राइट। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड हमें अपने आप में क्या क्या चेंजेस लाने हैं। उससे पहले आपको ये भी समझना बहुत जरूरी है, क्या अ पीस ऑफ पेपर विच यू कॉल डिग्री, विच यू कॉल डिप्लोमा, can help you in getting a job, or you need a certain set of skills. So I'll tell you my story. As Ritu ma'am had told, I am a postgraduate. I'd done in marketing, I'd done in international business, and worked more than a decade in FMCG sector. And I'm an educationist as well. बहुत सारे education institution में बहुत सारे seminars और session लेता हूँ, and that's a common problem that we face. Placement sir कैसे, और जैसे आपको एक प्रॉब्लम है यही प्रॉब्लम मेरे को भी है, मैंने भी यही प्रॉब्लम फेस की। Fortunately, I am the CR of my class at the time when I am pursuing my post graduation. I don't want it to name of the institute, give you the name of the institution, but yes, that is among the top 20 institution of India. So I am a pass out of that particular institution, and the problem which you guys are facing या कोई भी आज की डेट में फेस कर रहा है, ये एक जनरल प्रॉब्लम है जो हर कोई फेस करता है। एंड हर किसी की एक्सपेक्टेशन इंस्टीट्यूशन से, हर किसी की एक्सपेक्टेशन अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा हाई होती है, बट वी आर इन टू आर कम्फर्ट जोन, हम उससे बाहर नहीं निकलेंगे, और यही हमारी लाइफ साइकिल चलती आती है। आज की डेट में क्या हो रहा है, हमने अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट करी, राइट, हमारे पास पैसे आए, हमने बाइक खरीद ली, उसके बाद हमारी एक नई एस्पिरेशन आ गई, हमें घर खरीदना है, हमने घर खरीद लिया। नाउ वी फील बाइक भी है, घर भी है, गाड़ी भी है, नाउ व्हाट नेक्स्ट, शादी भी हो गई, राइट। तो अब ये सब कुछ हो गई, नाउ वी आर इनटू अ कंफर्टेबल जोन। अब हम कंफर्ट जोन में चले गए कि अब क्या बचा अचीव करने के लिए। तो आई जस्ट वांटेड टू फोकस ऑन वन थिंग, जिस दिन आपका माइंडसेट में ये आ गया है कि अब मेरे पास कुछ नहीं बचा अचीव करने से, आप कंफर्ट जोन में चले जाएंगे एंड आपकी लाइफ वहीं खत्म हो जाएगी। सो वो कंफर्ट जोन कभी मत आने दो। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि हमारा पास्ट ऐसा रहा है, हमारे 10th के मार्क्स ऐसे थे, 12th के मार्क्स ऐसे थे, ग्रेजुएशन के मार्क्स ऐसे थे, एंड दैट इज द रीजन कि नहीं हो पाया। तो आई टेल यू, एज आई told you earlier also, I tell you my placement story. And my story was like, I'm a CR of at the time when I'm pursuing my post graduation. तो हुआ क्या, जनरली एक बड़ा अच्छा ट्रेंड होता है, कोई भी कंपनी आती है तो कंपनीज बच्चों को शॉर्टलिस्ट करती है। कैसे शॉर्टलिस्ट करती है, पहले थ्रू आउट 80% वाले आ जाओ, थ्रू आउट 75% वाले आ जाओ, फिर थ्रू आउट 70% वाले आ जाओ। इट हैपन्स इन माई केस ऑल्सो, सिचुएशन तो सेम है, राइट। माइट बी, चाहे 14 साल पहले की बात कर लें, 15 साल पहले की बात कर लें, चाहे रितु मैम से पूछें, चाहे रमेश सर से पूछें, चाहे सिद्धार्थ मिश्रा जी से पूछें, सिचुएशन सब जगह सेम ही रही है, कोई डिफरेंस नहीं आया सिचुएशन में। हमेशा सबसे पहले ऑप्ट किया जाता है हायर परसेंटाइल वालों को, ठीक है।
यही सिनेरियो हमारे साथ भी हुआ। तो दोस्त, या तो मैं ये समझ लूं कि वो सिनेरियो हो गया तो अब क्या बचा है, क्योंकि पास्ट एकेडमिक्स तो हम चेंज कर नहीं सकते, 10th के मार्क्स तो दोबारा चेंज नहीं हो सकते, 12th के मार्क्स तो दोबारा चेंज नहीं हो सकते, ग्रेजुएशन हम कर ही रहे हैं, और पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें तो अगेन ग्रेजुएशन के मार्क्स तो दोबारा चेंज नहीं हो सकते। नाउ व्हाट नेक्स्ट, अब क्या रह गया? तो द सेम थिंग हैपेंस टू मी आल्सो, एंड आई गॉट डिसअपॉइंटेड कि यार कंपनी आई, हमको शॉर्टलिस्ट नहीं करके गई। फिर दूसरी कंपनी आई, उसने भी थ्रू आउट 70 वालों को एक्सेप्ट किया, हमको एक्सेप्ट नहीं करके गई, शॉर्टलिस्ट नहीं करके गई। और कोई साला कुछ देख ही नहीं रहा है, जो भी बात कर रहा है मार्क्स की कर रहा है, कहता है पहले इंटरव्यू देने ही नहीं दूंगा, पहले लाओ 10 12 ग्रेजुएशन में कितने। तो ये एक प्रॉब्लम है जो बाय डिफॉल्ट चली आ रही है सालों से, एंड आई एम नॉट प्रीटी श्योर कि आगे कितने सालों तक चली जाएगी। बट अब रिक्रूटर इज समथिंग जिसका माइंडसेट काफी कुछ चेंज हुआ है, और धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं, बट दैट इज समथिंग, ये वो चेंजेस हैं जो एक दिन में नहीं आएंगे, इट टेक्स टाइम। ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन हाउ यू परफॉर्म। तो द सेम थिंग हैपेंस टू मी एज अ सीआर। अब सीआर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, उसे सब कुछ पता होता है, क्लास में चल क्या रहा है, क्लास में किसको मिल रही है, बाकी बच्चे तो चलो साइलेंट मोड पर हैं। सीआर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उसे पता है 80% वालों में इतने बच्चे आज इस इंटरव्यू में बैठेंगे, ठीक है, फिर 70 वाले इसमें बैठेंगे। और अपन लोग किस टाइप के थे, अपन लोग थे 10th में 72, 12th में 77, ग्रेजुएशन में किसी तरीके से धक्के मारकर हो गया 67 68। आजकल का क्या ट्रेंड है, आजकल का ट्रेंड है 99.9, 92.5, 95.5। सो कंपटीशन इज गेटिंग इंक्रीजिंग डे बाय डे। आजकल 82 85 वालों को तो कोई पूछता ही नहीं है, राइट? तो ये एक ट्रेंड इंडस्ट्री का चलता आ रहा है, और यही ट्रेंड का प्रॉब्लम हमने भी फेस करी, एंड वी गॉट डिसअपॉइंटेड कि यार कोई कंपनी पूछ नहीं रही है, फायदा क्या है इतना पढ़ने का, इतनी फीस देने का, जब किसी कंपनी को हमने बैठने के लिए अलाउ ही नहीं कर रही कोई कंपनी, एंड वी गॉट डिसअपॉइंटेड। अब उस टाइम एक ऐसी सिचुएशन होती है जब हमें पेरेंट्स के एक विजडम वर्ड्स याद आते हैं। कौन से वर्ड्स याद आते हैं? हर एक ने सुने होंगे वो वर्ड्स। कौन से वर्ड्स हैं वो? पढ़ लो। कितने लोगों ने सुना है? कैन एनी ऑफ यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ एंड से कि, और यू कैन रेज योर हैंड्स, कितने लोगों ने सुना है पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, कुछ काम नहीं आएगा, पढ़ाई काम आएगी, बेटा पढ़ लो? एनी ऑफ यू, कैन यू अनम्यूट योर सेल्फ एंड से समथिंग ऑन दैट? सुना है या नहीं सुना है? ओके, अवधेश जी ने सुना है, पढ़ लो वर्ड। ये एक बड़ी जनरल विजडम वर्ड्स हैं पेरेंट्स के, और उस टाइम वो हमें ध्यान आती है। उस टाइम तो हम सोचते हैं पता नहीं क्यों बोलते रहते हैं, क्या हो जाएगा, बिजनेस पे ही तो बैठना है। बट जब प्लेसमेंट की बारी आती है तब हमें ध्यान आते हैं वो विजडम वर्ड्स, पढ़। एंड वी सेड कि यार उस टाइम पढ़ लेते तो शायद कुछ आज सिचुएशन अलग ही होती। दैट्स ओके, ठीक है। 5 कंपनी आई, 6 कंपनी आई, 7 कंपनी आई, 8 कंपनी आई, 10 कंपनी आई, भाई हमको किसी ने सेलेक्ट ही नहीं किया। अगेन वी गॉट डिसअपॉइंटेड कि यार इतनी मुश्किल से कैट में मार्क्स लाए, इतनी मुश्किल से इंस्टीट्यूशन मिला, और ये बात कर रहे हैं 10 12 ग्रेजुएशन की, थ्रू आउट परसेंटेज की। चलो किसी तरीके से एक 10th कंपनी आई, और वो कंपनी थी एफएमसीजी सेक्टर की। आई जस्ट वांटेड टू नेम दैट कंपनी बिकॉज दैट वाज माय फर्स्ट जॉब, एंड दैट इज टीटीके हेल्थ केयर इंडिया, राइट? एंड दैट्स अ कंपनी जहाँ पे हमको भी अपॉर्चुनिटी मिली, हम गरीब लोगों की भी अपॉर्चुनिटी मिली जिनके 10 12 ग्रेजुएशन में जिनके 90s नहीं आए थे, कि एटलीस्ट हम अपनी भी प्रतिभा वहाँ पर दिखा सकें। सो दे हैड गिवन अस अपॉर्चुनिटी। सबका प्लेसमेंट होने के बाद हमारा नंबर आया, बैठे हम उस कंपनी में प्लेसमेंट के लिए। वहाँ पे भी सबसे पहले यही चीज़। अब आपने बहुत सारी फेसबुक पे वीडियोस देखी होंगी फ्रस्ट्रेशन वाली, जिसमें बहुत एब्यूजिव लैंग्वेज भी यूज होती है कि हमारी क्या गलती, अगर वो दिन रात जॉब कर रहा है, वो 10 बजे तक कंपनी में जॉब करता रहता है, करते रहता है, हम तो 5 बजे निकलेंगे। आई एम अ इंजीनियर। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं आज के एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। टुडे इज द इंजीनियर्स डे, 17 सितंबर, विश्वकर्मा डे, ठीक है, आज इंजीनियर्स डे है। तो बात हो रही थी तो आई थॉट कि ये चीज़ भी मैं आप सबसे शेयर कर लूँ। नाउ कमिंग बैक टू द सेम स्टोरी, तो सेम सिचुएशन हमारे साथ भी आई, कंपनी आई। अब होता क्या है, सीआर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू अरेंज अ रिफ्रेशमेंट फॉर द रिक्रूटर, ठीक है। बुरा तो बहुत लगता है, साला हमारा प्लेसमेंट भी नहीं हो रहा, हमको किसी ने शॉर्टलिस्ट भी नहीं किया, और इसको खाना भी खिलाना है, और वो भी हमने ही खिलाना है, ठीक है। चलो ठीक है,
एज अ CR यू हैव मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो हमको ये अपॉर्चुनिटी मिली. सो ड्यूरिंग दैट टेन्योर, जब एक गेस्ट को, एक रिक्रूटर को आपको कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठाना है, खाने के लिए पूछना है, मैंने 5 मिनट बड़ी हिम्मत करके उस रिक्रूटर से पूछा कि सर मेरे को ले पाएंगे क्या, 60 से ऊपर नहीं आया आज तक परसेंटाइल. एक बार 65 आए थे, पेरेंट्स बहुत खुश हुए थे और लड्डू बांटे थे उन्होंने उस दिन, क्योंकि मेरी कॉलोनी में किसी के आए नहीं थे इतने मार्क्स. उन्होंने कहा करते क्या हो, कर क्या रहे हो, और क्यों तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ. मैंने कहा सर सिलेक्शन तो किसी ने शॉर्टलिस्ट ही नहीं किया, आज तक अपॉर्चुनिटी ही नहीं दी. तो सिलेक्शन तो तब हुए ना जब मौका मिले अपने को बताने का. किसी ने आज तक दी नहीं अपॉर्चुनिटी. उस पर्सन ने बोला कि यू आर अ CR. ठीक है. देन उनका एक कॉमन क्वेश्चन था, CR किस बेसिस पे बने. तो हमने बड़ा एक सिंपल वर्ड बोला, सर हम बोलते बहुत हैं, हम बोलते बहुत हैं. तो कहीं ना कहीं फैकल्टी को लगता था कहीं ना कहीं क्लास में डिस्टरबेंस क्रिएट करेंगे, इसलिए इसे CR बना दो. तो कहीं ना कहीं ये इस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी तो किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा, इसीलिए हम CR बन गए. ठीक है. अब कंपनी थी FMCG सेक्टर की. ठीक है. तो उन्होंने बोला आज इंटरव्यू में बैठे हो. हमने कहा सर नंबर तो आज भी नहीं आया, अभी शायद अगर आप कहें तो नंबर आ जाए तो हम भी अपने आप को प्रेजेंट कर लें. जनरली उस पर्सन ने लंच किया, मेरी बातें सुनी और अपने रूम में चले गया. एंड जब सबका इंटरव्यूज हो गया, ठीक है, देर आर 30-35 पीपल, सबका इंटरव्यूज हो गया और सब हमसे अच्छे वाले बच्चे थे, जिसे हम कहते हैं कि अभी तो अच्छे बच्चे वालों का हो रहा है, 95 वालों का हो रहा है, हमारी अपॉर्चुनिटी आएगी. तो हम वेट करते रह गए. शाम के 5 बज गए, अपॉर्चुनिटी आई नहीं. उन्होंने कहा हमने 5 बच्चे सेलेक्ट करने थे, हमने 3 को शॉर्ट लिस्ट कर लिया, 2 हमें समझ नहीं आ रहे. राइट. अगले दिन फिर उसी रिक्रूटर को आना था कैंपस में प्लेसमेंट्स के लिए. एंड द गुड पॉइंट इज, एंड आप इसे कुछ भी कह सकते हैं, द गुड पार्ट इज, उस दिन रिक्रूटर ने हमारे प्लेसमेंट ऑफिसर को कहा कि आज मुझे उन बच्चों का करना है जिनकी मार्क्स 50 से लेकर 60 परसेंटाइल वाले में है, और जो आपके हिसाब से बहुत खुराफाती बच्चे हैं, हमेशा प्रॉब्लमेटिक बच्चे, मुझे आज उन बच्चों का इंटरव्यू करना है. प्लेसमेंट ऑफिसर भी परेशान, ये कैसी रिक्वायरमेंट है रिक्रूटर की जो ऐसे बच्चों का इंटरव्यू करना चाहता है जो बहुत शोर मचाते हैं, जो सीरियस नहीं है स्टडीज में. एंड ट्रस्ट मी, रात को 11:30 बजे प्लेसमेंट ऑफिसर की एक मेल आती है एंड उसमें क्लियर वर्जन था कि 50 से 60 परसेंटाइल वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं. एंड ऑन दैट मोमेंट आई पुट द सेंड बटन और मैंने अप्लाई किया. और हम थे 8 बच्चे जिनके परसेंटाइल बहुत कम थे, शोर मचाने वाले ज़्यादा बच्चे थे हम. ठीक है. फैकल्टी को परेशान करने वाले ज़्यादा बच्चे थे. और एट लास्ट हमें लगा कि आज तो इसको छोड़ेंगे नहीं, बड़ी मुश्किल से किसी ने हमको अपॉर्चुनिटी दी है, इसको तो ग्रैब करना ही करना है. और पूरी जील के साथ पूरी रात निकाल दी, 7-8 घंटे थे इंटरव्यू से पहले. हमने उस कंपनी के बारे में सब पढ़ डाला. सब पढ़ डाला मतलब ये समझ लो उसके रिव्यूज भी पढ़ डाले, जिससे हमें कोई लेना देना नहीं था. ठीक है. अगर किसी ने कीवी शू पॉलिश यूज की थी और उसने बुरा चीज डाली है कीवी शू पॉलिश के बारे में, हमने वो भी पढ़ डाले कि यार बड़ी मुश्किल से अपॉर्चुनिटी मिली है, इसे छोड़ेंगे नहीं. और नेक्स्ट डे जब हमारे को अपॉर्चुनिटी मिली, ट्रस्ट मी, जब प्लेसमेंट का रिजल्ट आया तो टोटल मिला के आउट ऑफ 32 स्टूडेंट्स, आउट ऑफ 37 स्टूडेंट्स, इनफैक्ट आई स्टिल रिमेंबर दैट नंबर, 37 बच्चे में से 8 बच्चे थे जिनकी परसेंटाइल कम थी. और टोटल मिला के 11 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, और जिसमें से 8 वो थे जो 50 से 60 परसेंटाइल वाले थे. और हम लोग बड़े खुश. और सबसे बड़ी एडवांटेज है कि 90 वाला बच्चा जो था वो एक कंपनी में बैठा नहीं हुआ, 2 कंपनी में बैठा नहीं हुआ, 3 में बैठा नहीं हुआ, चौथी में हुआ. हम एक ही कंपनी में बैठे और उसी में हो गया. ठीक है. पॉइंट क्या है कहने का, ये नहीं कहना चाहता कि 50 लाओ, 60 लाओ, शोर मचाओ. पॉइंट है पूरी जील से मेहनत करो. आपको नहीं पता कब अपॉर्चुनिटी आ जाए. एक ही अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन उसे छोड़ना नहीं है. उस एक अपॉर्चुनिटी के लिए अपनी जान लगा दो. आजकल की जब मैं जनरेशन की बात करता हूँ, इनफैक्ट मैं भी इतना बुढ़ा नहीं हूँ, बट हाँ स्टिल आई एम एट द एज ऑफ 37-38.
ठीक है। तो अगर उस टाइम की मैं बात करूं, मैं आज की जनरेशन की अगर बात करता हूं, जो कि 21, जो कि आपकी एज के ब्रैकेट में आते हैं, 21 22, बड़े स्लोली 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 चल रहा है, कोई जील नहीं है। एंड आई ऑलवेज फील कि हर डे एक नया डे होता है। पूरी जील, पूरी ताकत के साथ उस चीज में लग जाओ, ठीक है। एट द फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ टाइम में अभी तक हमने एक ही बार इंडिया को वर्ल्ड कप मैच जीतते हुए देखा है, दैट इज अंडर द लीडरशिप ऑफ महेंद्र सिंह धोनी, राइट। तो आपको पता है इंडिया में क्रिकेट का क्या सीन है, ठीक है। सो वी इंडियंस आर फॉन्ड ऑफ क्रिकेट। तो होता क्या है, जब वर्ल्ड कप का मैच था और जब बिल्कुल लास्ट टू लास्ट फाइट चल रही थी, तो अपने एक्सप्रेशंस कैसे थे। आजकल के मैं एक्सप्रेशंस देखता हूँ ना कि वर्ल्ड कप का मैच चल रहा है, कोई छक्का लग जाता है, कोई चौका लग जाता है, तो कहते हैं अरे वाह छक्का लग गया, अरे वाह छक्का लग गया, इस टाइप से बात करते हैं। हमारे टाइम में क्या था कि जब महेंद्र सिंह धोनी ने वो मैच जिताया, तो हमारा एक्सप्रेशन था यस वी गॉट इट, वी गॉट इट, वी गॉट इट, हम जीत गए। ये स्पार्क चाहिए आपको अपनी पर्सनैलिटी में, ये स्पार्क लाना है। जिस दिन ये स्पार्क आ जाएगा, हर दिन आपका एक नया दिन होगा। कोई दिन ऐसा नहीं होगा जिससे आप रिग्रेट करोगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों। आप सोचना भूल जाओगे मेरे साथ ऐसा क्यों। लेकिन आपको वो स्पार्क अपनी पर्सनैलिटी में लाना है, वो एडवेंचर अपनी पर्सनैलिटी में लाना है, और यही चीज हमको बिल्ड करनी है। एंड ट्रस्ट मी, कोई डिग्री, कोई डिप्लोमा आपको जॉब नहीं दिला सकता। यू नीड टू बिल्ड अप अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नेवर गिव अप, डोंट गिव अप। जो गिव अप नहीं करता है वो कुछ ना कुछ लेकर ही जाता है, और जो गिव अप कर जाता है फिर कहानी खत्म है, फिर कुछ नहीं हो सकता। तो आपको अपनी पर्सनैलिटी में वो स्पार्क लाना है, वो इंथुजियाज्म लाना है कि हमें हर सिचुएशन में जीतना है। विनिंग थ्योरी अप्लाइज एवरीवेयर, एवरीवेयर। एनीवेज, दैट्स माय प्लेसमेंट स्टोरी। आप सबकी भी अपनी अपनी प्लेसमेंट स्टोरी होगी। अपॉर्चुनिटी कभी कहकर नहीं आती है, कभी भी कहकर नहीं आती है। और आज की डेट में हमेशा कहा जाता है योर नेटवर्किंग इज योर नेटवर्थ। आप जितना नेटवर्किंग करते हो उतना आपका नेटवर्क, उतना आप ज्यादा अर्न करोगे। आई ऑलवेज बिलीव ऑन दैट थ्योरी एंड आई हैव अ सक्सेस इन दैट। चाहे मैंने टीटीके में काम किया, मैंने ब्रिल क्रीम, ब्लीच, स्क्रब, everything, I'd sell every damn thing. In fact, I'd open the accounts by standing in front of the ATM of ICICI Bank. That was the time, that was the time in 2003. 2003 में मैं HDFC बैंक में सेल्स ट्रेनिंग देता था। एंड उस टाइम पर I wanted to train the people of sales who used to stand in front of the ATM and they just come and they approach the people कि सर अकाउंट खुला लीजिए। आपके लाइफ में भी ऐसा बहुत टाइम आया होगा जब आप किसी बैंक से, एटीएम से पैसे निकालने गए हो और बाहर एक बंदा पूछता है सर अकाउंट खुलवाएंगे, एसबीआई से हैं या एचडीएफसी से हैं। ज़्यादातर क्लैश एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक महिंद्रा, इन सब का क्लैश रहता है क्योंकि इनका टारगेट ऑडियंस सेम है। तो आपको नहीं पता कब कौन सी अपॉर्चुनिटी आ जाएगी। बस आपको एक चीज ट्राई करनी है कि उस अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं है। आएगी एक ही, छोड़ना नहीं है, उसके लिए जान लगा देनी है। भूल जाओ सब कुछ, कम थे ज्यादा थे, जिसमें कुछ कर नहीं सकते तो उसके लिए क्या दुख मनाना। छोड़ना नहीं है। अगर एक कंपनी आई है, पूरी रात निकाल दो उस कंपनी के बारे में रिसर्च करने के लिए, और अगले दिन पूरे कॉन्फिडेंस से बैठो उसी नेचर से जो आपकी है, ठीक है। बस छोड़ना नहीं है, गिव अप नहीं करना कि हमारा नंबर कब आएगा। आपको भी नहीं पता कब आपका नंबर आ जाएगा। तो आज की पॉइंट से हम 6 चीजों पे फोकस करेंगे। इनफैक्ट जितने भी लोग हैं मैं उनसे कहूंगा एक पेन और पेपर निकाल लें और उन 6 एस्पेक्ट को लिख लें। ये 6 मैसेज हैं आज के इस इवेंट से, इस सेशन से। वो 6 चीजें आपके अंदर आ जानी चाहिए, जिसे आप कहते हो ना 6, आपको मैं आपको अराउंड 6 ऐसी टिप्स दे के जाऊंगा जिनसे आपका करियर बन जाएगा। आप अगर आज उदास हो या कुछ नहीं क्लिक कर रहा, ट्रस्ट मी, उन 6 चीजों पे कर लेना। मैंने लोगों की लाइफ में ड्रास्टिक चेंजेस आते हुए देखे हैं उन 6 चीजों से, और उन्हीं 6 चीजों पे
मैं आज फोकस करने जा रहा हूं। राइट? सबसे पहला पॉइंट, कितने लोगों ने थ्री इडियट्स मूवी देखी है? बहुत सारे लोगों ने देखी होगी, ऑलमोस्ट सभी ने देखी होगी, ऐसा कोई नहीं होगा जिसने थ्री इडियट्स नहीं देखी होगी। हॉल पे नहीं देखी होगी, टीवी पे देख ली होगी, टीवी पे नहीं देखी होगी, अमेजॉन प्राइम पे देख ली होगी, नेटफ्लिक्स पे देख ली होगी, कहीं ना कहीं देखी होगी। और किसी ने नहीं देखी तो उसके बारे में बहुत कुछ पेरेंट्स से सुन लिया होगा, या पेरेंट्स से नहीं तो दोस्तों से सुन लिया होगा। आज उसी की एक लाइन में आपको बताने जा रहा हूँ। आपने देखा होगा वहां पे आमिर खान जो हीरो होता है मूवी का, वो किसी भी क्लास में जाके बैठ जाता है, उसे कोई मतलब नहीं है, फर्स्ट ईयर है, जहां जगह मिलती है वो वहां चले जाता है, वहां से नॉलेज लेता है, दूसरी क्लास में चले जाता है, वहां से नॉलेज लेता है, तीसरी क्लास में चले जाता है, वहां से नॉलेज लेता है, और अपनी क्लास में ज्यादातर बाहर रहता है। ठीक है? राइट? सबसे बड़ा जो एक टिप है जो मैं आपको देना चाहता हूं आज, कलेक्ट नॉलेज, डोंट कलेक्ट मार्क्स। ऑलवेज कलेक्ट नॉलेज, मार्क्स के पीछे मत भागो, डोंट कलेक्ट मार्क्स, नॉलेज कलेक्ट करो। एंड दैट्स व्हाट थ्री इडियट टॉट यू। उस मूवी से यही सीखने को मिला है। ठीक है? एंड ट्रस्ट मी, जो आप क्लास में आप बैठते हो जब, तो एक अलग ही ऑरा होता है पर्सन का। आप बहुत कुछ सीखते हो, बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलती हैं, आपको केस स्टडीज से सीखने को मिलती हैं, आपको डिस्कशन से सीखने को मिलती हैं। दैट्स अ चार्म ऑफ अटेंडिंग अ क्लास। तो जब आप क्लास में बैठते हो, आप अपने फ्रेंड से बातें करते हो, बहुत सारी नई चीज़ें निकल के आती हैं। जब आप क्लास में बैठते हो, बहुत सारे आप और डिस्कशंस करते हो, आपको केस स्टडी से पढ़ाया जाता है। एंड आई बिलीव, क्योंकि मैं काफ़ी फैकल्टी के टच में हूँ विप्स की, तो काफ़ी फैकल्टी से मुझे पता चला दैट दे टीच यू हार्वर्ड केस स्टडीज, दे टीच यू आईवी केस स्टडी, जिसे आप कहते हैं HBR, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू। तो आपके कॉलेज में तो हार्वर्ड की केस स्टडीज भी पढ़ाई जाती है, आईवी की केस स्टडी भी पढ़ाई जाती है, इंसीड बिजनेस स्कूल की केस स्टडी पढ़ाई जाती है, आईएम्स की केस स्टडी पढ़ाई जाती है, आईआईटीज की केस स्टडी पढ़ाई जाती है। एंड VIMC इज वन ऑफ द प्लेटफॉर्म जहाँ पे तो आई हैड हर्ड, इनफैक्ट मिश्रा सर के साथ कल मैं बैठा था, वी हैव अ गुड कन्वर्सेशन, एंड ही टोल्ड मी कि इतने सारे टाई अप करके लाए हैं फॉर द पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम, रोटालियो स्टूडियो, थॉट, एंड बहुत सारी इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज हैं। इनफैक्ट रितु जी को ज़्यादा पता होगा इस बारे में, बट बहुत सारे टाइप्स हैं, और ऐसे टाइप हैं जिनसे आपको बहुत प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलने वाला है। मेरा उनसे एक छोटा सा क्वेश्चन था, मैंने कहा सर खाली डिग्री तो नहीं दोगे, क्योंकि मेरे केस में तो बड़ा ख़राब हो गया था सिस्टम जब मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करी थी। तो उनका कहना था सर डिग्री छोड़ो, आपको इतनी नॉलेज देंगे कि बच्चे का कोर्स ख़त्म होने से पहले प्लेसमेंट हो जाएगा, और बच्चा ये कहेगा कि सर NOC दे दो, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दो, क्योंकि मेरा जिस ऑब्जेक्टिव के लिए मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम प्लान किया था, वो ऑब्जेक्टिव मेरा फुलफिल हो गया, आई गॉट अ जॉब। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको एक डिग्री डिप्लोमा नहीं दे सकती, बट आपकी नेटवर्किंग, एक आपका प्रैक्टिकल एक्सपोजर, वो आपको चीज़ दे सकता है। सो सबसे पहली जो मेरी टिप थी, दैट इज कलेक्ट नॉलेज, नॉट मार्क्स, जिसका मैंने सबसे पहला आपको एग्जाम्पल दिया। कौन सा एग्जाम्पल था? दैट इज ऑफ एग्जाम्पल ऑफ थ्री इडियट्स। राइट? तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप जाओ क्लासरूम में, इस ऑब्जेक्टिव से जाना आज कुछ सीखना है। ये सोच के मत जाना आज ये पढ़ेंगे, आज इसको रटेंगे, फैकल्टी ने नोट्स दिए, उन नोट्स को टाइप करेंगे, घर पे जाके फिर पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में यही आना है, एग्जाम में जो आना है आ जाएगा। जो सबसे चीज़ जो आपको सीखनी है, वो यही सीखनी है कि लाइफ में आगे बढ़ना कैसे है। ठीक है? सो पॉइंट नंबर 1, कलेक्ट नॉलेज, नॉट मार्क्स। नाउ कमिंग टू पॉइंट नंबर 2, आप में से कितने लोगों ने मूवी देखी है पैडमैन? आई होप सबने देखी होगी। ठीक है? कैन यू नेम द रियल, ओके आई गॉट वन रेज हैंड, ओके पैडमैन देखी है। अब जब देखी है, आपको पता है हु इज द रियल पैडमैन ऑफ इंडिया? Any of you who can unmute and who can spell the name? The real Padman of India. ये तो ठीक है, अभी ये मत कह देना अक्षय कुमार ही तो था जी पैडमैन। तो गाइस अक्षय कुमार ने मूवी की थी। हु इज द रियल पैडमैन?
ज्यादातर मूवीज में आपको फॉर योर इन्फॉर्मेशन किसी ना किसी स्टोरी पे बेस्ड होती है, किसी ना किसी रियलिस्टिक स्टोरी पे बेस्ड होती है. सो द पॉइंट इज हु इज द रियल पैडमैन ऑफ इंडिया. सो द पर्सन इज ऑफ तमिलनाडु, ठीक है, एंड दैट इज मिस्टर रघुनाथम अरुणाचलम. ठीक है, दैट्स अ नेम ऑफ अ पर्सन जिसने पैडमैन, हु इज द रियल पैडमैन. अब मुझे एक छोटी सी चीज बताना, इस पर्सन के पास, आपने मूवी देखी है, मैं आपको मूवी से कनेक्ट करता हूं. जब अक्षय कुमार ने पैड बनाने का सोचा, सैनिटरी पैड बनाने का सोचा, क्या उसके पास कोई डिग्री थी? क्या कोई डिप्लोमा था? नहीं था. एंड ही गॉट सक्सेस. उसके ऊपर एक आईएम्स ने केस स्टडी भी बना दी. ठीक है, उसके पास क्या था? उसके पास जील थी, उसके पास कॉन्फिडेंस था, उसके पास किसी चीज को पाने की इच्छा थी, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उसके पास स्किल सेट था. स्किल क्या थी? वो कहाँ जॉब करता था? आपने अगर ढंग से मूवी देखी होगी, वो एक मशीनरी बनाने वाली छोटी सी शॉप पर जॉब करता था. उसे पता था मशीन कैसे बनाई जाती है. उसने अपना बहुत दिमाग लगाया. वो दिमाग किसी नॉलेज से नहीं मिला, किसी बुक से नहीं मिला, वो स्किल से मिला. उसने सोचा अगर मैं अपने स्किल सेट गेट बनाने में यूज कर सकता हूँ, वेल्डिंग करने में यूज कर सकता हूँ, और इसको किस तरीके से यूज कर सकता हूँ. और अगर मशीन इतनी कॉस्टली है, एंड आई एम नॉट अ इंजीनियर, मशीन इतनी कॉस्टली और मैं परचेज नहीं कर सकता ना, व्हाट इज द सब्स्टिट्यूट? तो उसने अपनी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं समझा, उसने अपनी प्रॉब्लम को का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए उसने आगे सोचना शुरू किया, एंड अल्टीमेटली ही हैड मेड इट. राइट? तो यू नीड टू कम अप विद दैट अनदर स्किल सेट. आपको अपनी लाइफ में स्किल्स ढूंढनी है, स्किल्स को गेन करो. एक आपने पेरेंट से, अगेन आई एम कमिंग बैक टू वन विजडम वर्ड, हाथ का कारीगर. सुना होगा अपने पेरेंट से बहुत. जो हाथ का कारीगर होता है वो कभी मात नहीं खाता, वो कभी भूखा नहीं रह सकता. क्यों? क्योंकि उसके हाथ में हुनर है. ये हमने बहुत अपने पेरेंट, मैंने बहुत सुना है. ठीक है, तो जो करो अच्छा करो, जो करो लगन से करो. सो दैट्स अ सेकंड टिप, आप लिख लो. फर्स्ट टिप क्या थी हमारी? कलेक्ट नॉलेज, नॉट मार्क्स. सेकंड टिप क्या थी? कलेक्ट स्किल्स, नॉट डिग्री. अक्षय कुमार के पास कोई डिग्री नहीं थी, कोई डिप्लोमा नहीं था, बट आईआईटी में गया था. ठीक है, आईआईटी में गया था, अपने इनोवेशन को डिस्प्ले किया था और सेलेक्ट हुआ था. ठीक है, और आज उस स्ट्रेटेजी पे पूरा इंडिया चलना चाहता है. राइट? तो कलेक्ट द स्किल सेट. थर्ड, तीसरा क्या पॉइंट हो सकता है? अब ये पॉइंट है जो आप सबको बहुत अच्छा लगेगा, और जो विप्स के केस में बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि मुझे पता है यहाँ का क्राउड कैसा है. मुझे पता है यहाँ का क्राउड कैसा है. आईपी के एग्जाम में क्या कट ऑफ जाती है, क्या सीईटी जाती है, कहाँ रैंक करता है. अगर नहीं पता तो मैं भी आपको थोड़ा एक आइडिया दे देता हूँ. अभी रिसेंटली पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम की रैंकिंग आई है, जिसमें जो वीआईएमसी की रैंक आई है, दे आर अमॉन्ग टॉप 7 इंस्टीट्यूशन, दे आर अमॉन्ग द टॉप 7 इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, जहाँ पे वीआईएमसी को फॉर देयर पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम रैंक किया गया है. और अगर आपके अंडर ग्रेजुएट की बात करें, बीजेएमसी की बात करें, देन ऑफ कोर्स यू आर अमॉन्ग द टॉप 10 इंस्टीट्यूशन इन इंडिया. तो दैट्स अ नेम एंड यू नीड टू बी फील प्राउड ऑफ इट. आपको वो प्राउड फील करनी चाहिए. इट्स अ फीलिंग ऑफ प्राइड कि यस यू आर अ विप्सियन. There are 90% people who don't have anything to say after completion of their program. You have, आपके पास वो है, आप वो बोल सकते हो, आई एम अ विप्सियन, मैंने विप से किया है. एंड ट्रस्ट में, किसी को भी बोलते हो अगर दिल्ली एनसीआर में स्पेशली, कहता अच्छा विप्स में किया है, ओ एडमिशन हो गया था, कितना रैंक आया था. तो दैट वाज द एक्सप्रेशन. मैं आपको अपने ही केस में बता देता हूँ. आज मेरा विप्स में सेशन था, मैंने अपने फेसबुक पेज पे डाला, आई गॉट 100 ऑफ कमेंट्स. अच्छा विप्स में था, एडमिशन करा दो किसी तरीके से, जुगाड़ है क्या वहाँ पे कोई. मुझे समझ में आया कि यार विप्स की क्या वैल्यू है मार्केट में. दैट इज समथिंग, वो आपको कमेंट सेक्शन में जाओ, आपको पता चल जाएगा. एंड देयर आर मैनी of the people who had started something of their own, and that is something which I like at Vips, कि आप यहाँ really you come up to take a knowledge, you come out with a wonderful skill sets, आपको बना देते हैं.
आपको कुछ ना कुछ बना देंगे कि आप अपना कुछ स्टार्ट कर सकते हो, आप अपना स्टार्टअप कर सकते हो। एंड जनरली होता क्या है यूजी में, इट्स मोर और लेस इट्स अ थ्योरेटिकल प्रोग्राम, काइंड ऑफ अ थ्योरेटिकल प्रोग्राम जहाँ पे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बहुत कम होती है। बट जब हम पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करते हैं तो वो भरमार है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स का, वहाँ पे होता ही प्रैक्टिकल है। और व्हेन आई गॉट टू नो फ्रॉम सिद्धार्थ सर कि ओके हमने प्रोग्राम शुरू कर दिया VIMC, तो आई गॉट डिलाइटेड। ओके सर, चलो बढ़िया है, आपके बच्चों के लिए इट वुड बी वेरी मच बेनिफिशियल। इनफैक्ट एटलीस्ट द अदर पीपल इज ऑल्सो हैविंग एन अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन विप्स। जो अंडर ग्रेजुएट में ड्रीम फुलफिल नहीं हुई थी, वो पोस्ट ग्रेजुएशन में तो एटलीस्ट हम कर सकते हैं। ऑफकोर्स इनका अपना एग्जाम होगा, इनका अपना सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा, तो वो तो रितु जी ज़्यादा अच्छे से बता सकती हैं। वी जस्ट हैव अ 10 to 15 मिनट चैट येस्टरडे विद रितु जी, तो काफ़ी हमारा डिस्कशन हुआ था कैसे प्रोग्राम है क्या है। मुझे बड़ा अच्छा लगा प्रोग्राम। एनीवेज कमिंग बैक कि अब और आगे क्या, फोर्थ क्या है, जो थर्ड वाला ऑप्शन था वो क्या था? सो कलेक्ट फ्रेंड्स। बड़ा अच्छा लग रहा होगा ये सुन के। अच्छा, तो फ्रेंडशिप वाली बातें हो गई हैं। सो दैट्स अ थर्ड टिप, लिख लो। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू कलेक्ट फ्रेंड्स। माइट भी हो सकता है आप फ्रेंडशिप किसे समझते हो मुझे नहीं पता, मैं आपको फ्रेंडशिप के बारे में बताता हूँ। जब मैं फेसबुक पे हूँ या ट्विटर पे हूँ या लिंक्डइन पे हूँ, वी हैव नंबर ऑफ फॉलोअर्स, 5000 फॉलोअर्स हैं मेरे फेसबुक पेज पर, ठीक है। लेकिन अगर कभी मुझे कुछ प्रॉब्लम आती है, कितने लोग एक्चुअली मेरी हेल्प करने आएंगे, ये कभी भी आप टेस्ट कर लेना। मेरे ख्याल से एक या दो या नहीं भी आएगा, ठीक है। तो गेटिंग मोर और मोर फ्रेंडशिप ऑन सोशल प्लेटफॉर्म इज एक्चुअली नॉट अ फ्रेंडशिप, वो आपकी नेटवर्किंग नहीं होती। कलेक्ट योर फ्रेंड्स, योर रियल फ्रेंड। जब हम रियल फ्रेंड की बात करते हैं, द पीपल जिनके साथ आप बैठ के पढ़ते हो, जिनके साथ आप बैठकर खाते हो, कलेक्ट दोज फ्रेंड्स, ठीक है। ये फ्रेंडशिप जो एक ऐसी चीज है, ये आपके साथ थ्रू आउट द लाइफ चलने वाली है। फेसबुक फ्रेंड, कभी प्रॉब्लम आएगी डाल देना मुझे 50,000 रुपीज चाहिए, देखता हूँ कितने फेसबुक से तुम्हारे पास रिप्लाई आते हैं कि हाँ हम 50,000 रुपये देंगे, हम 60,000 रुपये देंगे। एक आ जाए तो बता देना। माइट भी अगर अपनी क्लास में 5 लोगों को बोलोगे, कोई ना कोई आपका फ्रेंड आपकी हेल्प करने के लिए आगे जरूर आएगा। एंड दैट्स यू कॉल्ड अ नेटवर्किंग। और आज की डेट में ये एक विनिंग मंत्र है। सो कलेक्ट फ्रेंड्स, फ्रेंड्स को मत छोड़ना, ठीक है। अच्छे फ्रेंड्स बनाओ, अच्छे दोस्त बनाओ और अच्छे से दोस्ती निभाओ। कीप देमसेल्फ इन अ क्लोज नेट। कोई काम नहीं आएगा, कोई रिलेटिव काम नहीं आएगा, फ्रेंड्स काम आएंगे। और जिस रिलेटिव से हेल्प मांगोगे 10 बार सुनाएगा, एक बार फ्रेंड से हेल्प मांग के देखो, कभी आपको सुनाएगा नहीं, कह देगा कोई बात नहीं यार, जब हो तेरे पास दे देना। किसी रिलेटिव से कर लो, वो 10 जगह जाके गाना गाएगा, यार उसे उधार दिया था, बोलने की हिम्मत नहीं हो रही कि वापस हो जाए। फ्रेंडशिप जब वर्ड आ जाता है ना, तो आपकी हिम्मत सब साइड लाइन हो जाती है, सब असाइड हो जाती है, हिम्मत की बात ही नहीं है। दोस्त है, कुछ भी बोल सकते हैं। सो कलेक्ट योर फ्रेंड्स, राइट। अब आ जाते हैं, फ्रेंड्स वाला सर्कल हो गया। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ। स्किल सेट की हम बात करते हैं, एक छोटी सी कहानी है, वो आपको बताऊंगा। मैं कभी नहीं चाहता मैं इस सेशन को बड़े थ्योरेटिकल लेवल पे चाहूँ, मैं रियलिस्टिक चीज़ों पे और बड़े प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे बातें करता हूँ। तो हुआ क्या था, एक बहुत, दैट्स अ वेरी ओल्ड स्टोरी। तो देयर इज अ काइंड ऑफ अ स्मॉल विलेज, जो कि बिल्कुल एक सिटी से थोड़ा सा हटकर था। तो सिटी और उस विलेज के बीच में एक, आप कह सकते हो एक छोटी सी नदी पड़ती थी, या आप कह सकते हो एक छोटा सा काइंड ऑफ अ पॉन्ड, जो उस विलेज को उस पर्टिकुलर सिटी से डिस्कनेक्ट करता था, या आप कह सकते हो दैट्स द ओनली वे यू कैन रीच टू दैट विलेज। तो एक बार क्या था कि 3 लोग थे पूरी उस बोट में, वो बोट से जा रहे थे, अपने गांव जा रहे थे। उनमें से एक बड़ा एक मोची था, ठीक है, और एक वहाँ का जनरल, एक किसान था, और एक जो तीसरा बंदा था, दैट वाज अ वेरी एनलाइटन ब्राह्मण, ठीक है। एक पंडित जी थे, अगर आपकी लैंग्वेज में बात करें तो एक पंडित जी थे। तो बोट चले जा रही थी, चले जा रही थी। तो पंडित जी ने एक क्वेश्चन किया, क्या तुम्हें वेदोस की जानकारी है, वेदास की जानकारी है? तो जो भी वहाँ और कॉमन मैन थे, उसने कहा नहीं
पंडित जी उसकी तो बिल्कुल जानकारी नहीं है, हमें वेदों शास्त्रों की कोई नॉलेज नहीं है। पंडित जी ने बोला बड़े आराम से कि अच्छा कोई नॉलेज नहीं है, तुम्हारी तो जिंदगी खराब हो गई, तुम्हारी तो योर क्वार्टर ऑफ योर लाइफ गॉट वेस्टेड, अगर तुम्हें वेदों और शास्त्रों के बारे में जानकारी नहीं है, वेदों और शास्त्रों की नॉलेज नहीं है, मतलब क्वार्टर ऑफ योर लाइफ गॉट वेस्टेड। ठीक है, थोड़ी देर के बाद आगे चले आगे चले, फिर पंडित जी ने एक क्वेश्चन पूछा उस बोट में जो और लोग कॉमन मैन्स बैठे हुए थे। अब अगला क्वेश्चन क्या था, उन्होंने सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा, सबसे पहले वेद का आ गया। ठीक है, वेद इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू अ काइंड ऑफ अ नॉलेज। ठीक है, तो उसका ये हुआ कि उसकी भाई बिल्कुल जानकारी नहीं है। अगले वाले से पूछा कि ठीक है वेदोस की तो जानकारी नहीं है, एक बात बताओ, क्या तुमने पुरानी कथाओं के बारे में कभी पढ़ा है, क्या तुमने कृष्ण जी का उपदेश सुने हैं? दूसरे ने कहा नहीं सर, इसकी भी जानकारी नहीं है। उसने उनको भी यही कहा, तुम्हारी भी हाफ लाइफ वेस्ट हो गई है। ठीक है, थोड़ी देर के बाद हुआ क्या, अचानक से एक स्टॉर्म आ गया, बारिश होने लगी, तूफान आ गया। तो उस कॉमन पर्सन ने ब्राह्मण से पूछा, पंडित जी एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या आपको तैरना आता है? पंडित जी ने बड़े लो वॉइस में कहा, नहीं मुझे तैरना नहीं आता। तो उन कॉमन पर्सन ने पंडित जी से कहा, आपकी तो पूरी जिंदगी ही खराब हो गई है। ठीक है, क्यों? तैरना नहीं आता। तैरना क्या है? तैरना इज अ स्किल, नॉलेज नहीं है। तैरना इज अ स्किल, स्किल सेट ही नहीं था। और उस टाइम जिस चीज की जरूरत थी वो था तैरना। वो स्किल सेट अगर आता तो अपने गांव पहुंच जाते, क्योंकि बारिश थी, तूफान था। और तैरना पंडित जी को नहीं आता था, नॉलेज थी, तैरना नहीं आता था, स्किल नहीं थी, मर गए, नहीं बचा पाए अपने आप को। इसलिए मैंने आपको सेकंड पॉइंट बताया था, कलेक्ट स्किल्स नॉट डिग्री नॉट डिप्लोमा। ठीक है, कलेक्ट नॉलेज नॉट मार्क्स। और थर्ड आपको बताया था, आई हैड रिक्वेस्टेड यू टू कलेक्ट फ्रेंड्स, क्योंकि वो आपके काम आएंगे। नेटवर्किंग आपके काम आएगी, थ्रू आउट द लाइफ काम आएगी। आप चाहे जॉब कर रहे हो, चाहे अपना बिजनेस कर रहे हो, हर लेवल पे आपको वो नेटवर्किंग काम आने वाली है। फोर्थ पॉइंट, जो सबसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लो ये भी, इन्वेस्ट ऑन योर हेल्थ। राइट, इन्वेस्ट ऑन योर हेल्थ। आज की डेट में क्या होता है, एक ऑथर है विच आई वांटेड टू टेल यू, दैट इज जैक नेल्सन। जैक नेल्सन ने एक कोट दी थी, एंड उस कोट का था, व्हेन आई हैव अ जॉज आई डोंट हैव अ पीनट्स टू मंच, एंड व्हेन आई हैव अ पीनट्स आई डोंट हैव अ जॉज टू मंच। मतलब मेरे पास दांत जब थे, जब मेरे पास खाने के लिए चीजें नहीं थी, आज खाने के लिए चीजें हैं बट आज मेरे पास दांत नहीं है। ठीक है, अब ये मैंने क्यों आपको बताया और क्यों आपसे कहा इन्वेस्ट ऑन योर हेल्थ। लाइफ की ये जो रेस है, इस लाइफ की रेस में भागते भागते हम इतने बिजी हो जाते हैं, ऐसा मुझे नहीं लगता यहाँ पे जितने भी लोग हैं जिसमें से किसी ने कभी ये नहीं सोचा होगा कि हमें अपना कुछ करना है। जॉब कोई नहीं करना चाहता, ट्रस्ट मी, जॉब कोई नहीं करना चाहता। हर एक किसी का माइंडसेट में एक चीज होती है कि हमें अपना बिजनेस शुरू करना है, हमें अपना कुछ करना है। बट 90% ऑफ योर एंटरप्रेन्योर ड्रीम्स गॉट शैटर्ड। क्यों? क्योंकि हम रिस्क नहीं लेना चाहते, हम रिस्क से डरते हैं। ठीक है, और जब हम रिस्क लेना चाहते थे तब हमारी हेल्थ ने हमें अलाउ नहीं किया। हम इस पोजीशन पे पहुंच गए थे कि अब रिस्क ले सकते हैं लेकिन अब हेल्थ साथ नहीं दे रही, अब एज साथ नहीं दे रही। सो डोंट लेट योर एंटरप्रेन्योर्स गोल्स शैटर्ड। आप आज कमा रहे हो, जैसे मैंने कहा था, डोंट कम इनटू अ कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन नहीं आने देना लाइफ में कभी भी, ट्रस्ट मी, कभी मत आने देना। आज आप कमा रहे हो, आप क्या करते हो, कमाते हो, इन्वेस्ट करते हो और सोचते हो मेरा गोल ये, बाइक थी, पैसा आ गया बाइक खरीद लूंगा, पैसा आ गया गाड़ी खरीद लूंगा। ठीक है, फिर गाड़ी आ गई, फिर पैसा आ गया, क्या करूंगा, फिर पैसा आ गया घर खरीद लूंगा, अब घर भी आ गया। ठीक है, अब मैं कंफर्ट जोन में आ गया, अब कुछ नहीं चाहिए, अब जिंदगी चलती रहेगी। अगर इस सोच से आगे बढ़ोगे
तो आप कभी भी अपने एंटरप्रेन्योर गोल्स अचीव नहीं कर पाओगे। सो अगर कुछ अचीव करना है, यू नीड टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आज कमा रहे हो, बाइक मत खरीदो, उस मनी को अपने प्लान में इन्वेस्ट करो। इन्वेस्ट इन योर बिजनेस प्लान, इन्वेस्ट ऑन योर आइडिया, अपने आइडिया को इम्प्लीमेंट करो। डोंट गो इनटू अ कंफर्ट जोन, डोंट परचेज अ कार, डोंट परचेज अ हाउस। रेंट के घर पे रहते हो, उस जो भी आपने पैसा अर्न किया है कोई बात नहीं, उसको अपने एंटरप्रेन्योर गोल, अपने जो आपका ऑब्जेक्टिव है, जो आप करना चाहते हो उसमें अचीव करो, क्योंकि टाइम वापस कभी नहीं आएगा। आज आप वो मेहनत कर सकते हो, 50 साल में अगर सोचोगे वो मेहनत करने की, तो शायद वो मेहनत नहीं अचीव कर पाओ, वो मेहनत उतनी मेहनत ही ना कर पाओ, उतना रिस्क लेने की क्षमता हो बट कर नहीं पाओगे, क्योंकि बॉडी अलाउ नहीं करेगी। तो मैं हमेशा ये कहता हूं, पर डे ट्राई टू डू समथिंग न्यू, कुछ नया करो, कुछ सोच के निकलो, आज ये करूंगा नया। बहुत बार ऐसा होता है, बहुत सारे हमारे रिलेटिव्स होते हैं जिनसे बात करे हुए में बहुत टाइम हो जाता है, राइट? एक दिन निकालो, आज 10 लोगों को कॉल करूंगा जिनसे 5 साल से बात नहीं की, या जिनसे 1 साल से आज एक भी बार बात नहीं की। ट्राई टू टॉक देम, ट्राई टू क्रिएट योर नेटवर्किंग। जिस दिन ये करना शुरू कर दोगे, आपका सर्कल भरना शुरू हो जाएगा, आपके कॉन्टेक्ट्स बनना शुरू हो जाएंगे। और मैंने एक वर्ड बोला था, योर नेटवर्किंग इज योर नेट वर्थ, ट्रस्ट मी, गो विद दैट, राइट? एक फिफ्थ जो टिप मैं आपको देना चाहता हूं, वो है कलेक्ट एक्सपीरियंसेस, नॉट रिवॉर्ड्स। 90% ऑफ लोग ये गलतियां करते हैं। कुछ हम जैसे भी होते हैं जो ऐसी गलतियां करते हैं, कुछ आप जैसे भी होते हो। हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? हम पैसे के पीछे भागते रहते हैं। इंटर्नशिप की जब बारी आती है, अगर कोई कंपनी आती है जो कहती है पैसा नहीं देंगे, बस नॉलेज देंगे, सीखने को बहुत मिलेगा, और वहीं पर साथ में एक और कंपनी आती है जो कहती है पैसा भी दूंगी, ठीक है? तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास भी एक ऐसा ऑप्शन आया था व्हेन आई गॉट इनटू टीटीके हेल्थ केयर इंडिया। तो मेरे पास एक ऑप्शन थी शहनाज हुसैन की, आपने सबने नाम सुना होगा, शहनाज हुसैन, द पर्सन हु इज इनटू द लेडी हु इज इनटू कॉस्मेटिक्स। तो वो मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आई इंटर्नशिप के लिए। तो शहनाज हुसैन दे रही थी 25,000 ड्यूरिंग दैट टाइम, इन द ईयर 2004-2005। और दूसरी ऑप्शन थी मेरे पास इंटर्नशिप के लिए एक और कंपनी विच इज टीटीके हेल्थ केयर इंडिया, ठीक है? अब वहां पे क्या हुआ, शहनाज हुसैन पैसा दे रही थी, टीटीके हेल्थ केयर इंडिया पैसा नहीं दे रही थी। उस टाइम ये था यार, जहाँ पैसा मिलेगा वहीं जाएंगे, हम क्यों जाएं, हमारे से काम भी ज़्यादा कराएंगे, पैसा भी नहीं देंगे। बट एट एनी हाउ मुझे लगा कि नहीं यार, ये रेपुटेड जॉब है, इसको कर लेना चाहिए। शहनाज हुसैन में कौन काम करेगा, उसकी तो ऑनर भी शक्ल में देखने में अच्छी नहीं लगती, ठीक है? आप सबने भी शहनाज हुसैन को देखा होगा, ठीक है? लंबे लंबे बाल, खुले खुले बाल। तो मैंने कहा नहीं यार, यहाँ नहीं काम करेंगे, ये अपने बस का नहीं है, अब हम तो काम करेंगे टीटीके हेल्थ केयर इंडिया में, रेपुटेड जॉब होगी, किसी को कह तो पाएंगे, वरना क्या कहेंगे, शहनाज हुसैन के पास जॉब करते थे। तो ऑब्जेक्टिव बड़ा ये क्लियर था। मेरा जो पॉइंट है, कलेक्ट एक्सपीरियंसेस नॉट रिवॉर्ड्स। ये मैं क्यों आपको बार बार कह रहा हूँ, जहां से जितनी नॉलेज मिले, पैसे के पीछे अभी मत भागो, अभी एज नहीं है पैसों के पीछे भागने की, बहुत टाइम मिलेगा पैसा कमाने के लिए। अभी जितनी नॉलेज लेनी है ना, वो नॉलेज ले लो। गो विद द ब्रांड्स, इफ दे आर नॉट पेइंग यू अ सिंगल पेनी, डोंट रिग्रेट ऑफ इट। रिग्रेट मत करना कि कुछ दे नहीं रहे और अपने से खर्चा लग रहा है। आपको मैं एक बात बता दूं, इन्फोसिस में जब प्लेसमेंट साइकिल के लिए आते हैं ना, आईआईटी से बच्चे उठाते हैं और इन्फोसिस में जॉब ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं। 1 साल की ट्रेनिंग होती है, वो मैसूर में होती है, ठीक है? और वो ऐसी ट्रेनिंग होती है कि लोग बाग पे कर कर वो ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। उस ट्रेनिंग में जो तुम सीख जाओगे ना इन्फोसिस की, वो अपने 4 साल के बीटेक में नहीं सीख पाओगे। उस ट्रेनिंग का इतना अच्छा स्कोप और इतना अच्छा फीडबैक है मार्केट में। तो ये एक ऐसी चीज है, कलेक्ट एक्सपीरियंसेस। इसके लिए मैं आपको अगेन टू कनेक्ट विद यू एक एग्जांपल दूंगा। जब हम ये बात करते हैं ना, बहुत सारे लोगों को लगेगा बेवकूफ है, क्या बात कर रहा है, पैसा नहीं कमाए, अब नहीं कमाएंगे तो कब कमाएंगे? आप में से कितने लोगों ने दशरथ माझी का सुना है, माउंटेन मैन? कितने लोगों ने सुना है? दशरथ माझी मूवी भी आई थी, सुना होगा सबने, ऑलमोस्ट काफी सारे लोगों ने सुना है। मैनी ऑफ द पीपल हैड रेज देयर हैंड की ओके हमने सुना है, हमने सुना है। तो दशरथ मांझी क्या करता था, बहुत सारे लोगों को समझ में आता था कि यार डिप्रेस्ड है, वाइफ को नहीं बचा पाया, क्या करेगा,
परेशान है, इसलिए आ जाता है रोज और एक ही चीज को डिग करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। एंड ही कीप्स ऑन डूइंग दैट एंड ही हैड डन इट फ्रॉम 22 ईयर्स। 22 साल तक उसने ये काम किया। आज की डेट में अगर बहुत सारे बच्चे मुझे दिखाई दे रहे हैं, राम्या है, गुलशन है, अगर मैं गुलशन से कहूँ 22 मिनट एक चीज करनी है तो शायद वो कर नहीं पाएगा। यार एक ही जगह बैठकर 22 मिनट करना है, कैसे करूं? उस पर्सन ने 22 साल एक ही चीज की है। खोदता था, उधर से पत्थर उठा के दूसरी जगह रखता था, खोदता था, पत्थर उठा के दूसरी जगह करता था। काफी लोग उस पर खुद पे पत्थर मारते थे कि बेवकूफ इंसान है, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। आज की डेट में उसे कौन नहीं जानता। हर चीज रिवॉर्ड से नहीं होती। आपके फेलियर्स आपको बहुत सारी चीजें सिखाते हैं, बहुत सारी चीजें सिखाते हैं। आज किसी बिजनेस में लॉस हो गया, वो लॉस आपको लाइफ टाइम की एक नॉलेज देकर जाएगा। सो आई ऑलवेज से कलेक्ट एक्सपीरियंसेस नॉट रिवॉर्ड्स। हर एक्सपीरियंस नया एक्सपीरियंस होता है और हर लॉस आपको प्रॉफिट करना सिखाता है। हर लॉस, आज लॉस होएगा, अगली बार वो करने से पहले एक बार सोचोगे यार लास्ट टाइम किया था, लॉस हो गया था, इस बार ये नहीं गलती करूंगा। तो हर एक्सपीरियंस आपको कुछ ना कुछ सिखाकर जाएगा। तो ये एक मेरा 5th पॉइंट था, इसको भी बिल्कुल लिख लो आप। एंड ट्रस्ट मी, ये अगर करोगे यू विल नॉट फील निग्लेक्टेड और आपको कभी बुरा नहीं लगेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। और छोड़ दो लोग क्या कह रहे हैं, लोगों का काम है कहना। एक गाना था ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो लोग कहते रहेंगे, ठीक है। एंड इट्स नथिंग, इट्स अ जेलिसी कि हम ये नहीं कर पाए और ये पर्सन कर रहा है। हम नहीं कर पाए और ये सामने वाला इंसान कर रहा है। तो आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको डिमोटिवेट करेंगे डिफरेंट फेसेस में। क्यों? क्योंकि वो जेलिसी वाली आ गई। यार क्यों कर रहा है, इसने किया था, क्यों कर रहा है, इसे लेट डाउन करेंगे, लेट डाउन करेंगे, क्या बेकार की चीज कर रहे हो। और जिस दिन आप पॉपुलर हो जाओगे, एक मैं आपको और चीज बता दूं, अभी ओलंपिक्स हुए थे। ओलंपिक्स में जब एक एथलीट जाता है, उसे कोई छोड़ने नहीं आता, खाली मम्मी और पापा आते हैं और उसके ब्रदर और सिस्टर। लेकिन जब वो जीत कर आता है ना, कितने लोग होते हैं, बाहर भीड़ लगी होती है एयरपोर्ट के, क्योंकि वो जीत गया। ठीक है। और अभी इसी एथलीट में एक ऐसा एथलीट था जिसने आपको गोल्ड दिलाया। क्या नाम था? नीरज, राइट? गोल्ड मेडलिस्ट, गोल्ड, पहला गोल्ड दिलाया था। आपको पता है कितनी बार वो डिस्क्वालीफाई हुआ है? 7 साल उसने अप्लाई किया, आऊंगा आऊंगा आऊंगा। हर बार अकेला जाता था और अकेला ही वापस आ जाता था, ना कोई लेने आता था ना कोई छोड़ने आता था। इस बार गया तो अकेला था, जब आया वापस तो 1 से 2 हजार लोगों की भीड़ थी उसे लेने के लिए। पूरा गांव आया हुआ था उसको लेने के लिए। क्यों? क्योंकि कुछ करके आया था। जाते हुए कहते थे यार पिछली बार भी गया था, इस बार भी ऐसे ही आएगा। जाते हुए लोगों का ऑब्जेक्टिव ये था, निग्लेक्ट कर रहे थे, डीमोटिवेट कर रहे थे। हर साल जाता है, करके कुछ नहीं लाता, इस बार भी जाएगा, करके कुछ नहीं लाएगा, कोई सीरियसली नहीं ले रहा था। और जो करके आया, इस बार ऐसा सबने सीरियसली लिया कि पूरी दुनिया उसको लेने के लिए पहुंची हुई थी एयरपोर्ट पर। डोंट मेक योर परसेप्शन, बनाना बहुत आसान है बट परसेप्शन मत बनाओ। किसी के बारे में कोई परसेप्शन बनाने की जरूरत नहीं। एंड हु आर यू टू मेक द परसेप्शन? थिंक पॉजिटिव। नीरज बड़े पॉजिटिवली थिंक प्रोसेस रखकर गया। ठीक है। तो हमेशा ये ध्यान रखना, कलेक्ट एक्सपीरियंसेस नॉट रिवॉर्ड्स। लास्ट टिप आपको दे रहा हूं, वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम, तो ये लास्ट टिप है, कलेक्ट पर्पस ऑफ योर लाइफ। अपनी लाइफ में एक ऑब्जेक्टिव ढूंढ लो कि किस चीज पे आपको फोकस करना है। कितने लोगों ने, अगेन मैं बार बार मूवीज का एग्जांपल इसलिए देता हूं ताकि तुम लोगों के साथ कनेक्ट कर पाऊं, राइट? तो अगेन एक एग्जांपल देता हूं, कितने लोगों ने मूवी देखी है कुंग-फू पांडा? कितने लोगों ने देखी है कुंग-फू पांडा? काफी लोगों ने देखी होगी। गुलशन जी ने हाथ खड़ा किया, रितु ने किया, दीपक जी ने हाथ खड़ा किया, देन कृतनीत ने हाथ खड़ा किया। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कहा कि हाँ भाई हमने देखी है। कितने लोगों ने मूवी देखी है तमाशा?
बहुत सारे लोगों ने तमाशा भी देखी है, ठीक है। क्या था उस मूवी में, क्या उस मूवी से तुमने सीखा? हर चीज, एक आपको इसी मूवी के ऊपर बता देता हूं, हर चीज पोजीशन और पावर के लिए नहीं होती। आज मैं एक बड़े इंपॉर्टेंट डिग्निटीज के साथ बैठा था, उन्होंने मुझे बताया, कल एक भाषण आया था नितिन गडकरी जी का, ठीक है। तो नितिन गडकरी जी ने कहा, आज की डेट में कौन परेशान नहीं है? चीफ मिनिस्टर इसलिए परेशान है क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता था, ठीक है। एमएलए इसलिए परेशान है क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर बनना चाहता था। नीचे वाला जो एक कार्यकर्ता, जिसे हम कहते हैं कार्यकर्ता, इसलिए परेशान है क्योंकि उसको सीट नहीं मिली। तो कौन परेशान नहीं है? हर कोई परेशान है लाइफ में। कौवा क्यों परेशान है? कौवा इसलिए परेशान है क्योंकि वो काला है, ठीक है। उसको क्या खाने को मिलता है? उसको खाने को मिलता है बॉडी के अवशेष, ठीक है। लोग बाग कौवे को बैठा हुआ देखते हैं तो उसे हाथ मार के भगा देते हैं। कौवा इसलिए परेशान है, कोई इज्जत ही नहीं है यार मेरी, जहां पे भी जाता हूँ लोग बाग भगा देते हैं। क्या हूं और काला भी हूं देखने में, कोई मेरे को देखना पसंद नहीं करता। कौवे की ये परेशानी। तो कौवा एक पंडित जी के पास गया, बोला पंडित जी मुझे तो चेंज कर दो, मैं कौवा नहीं बनना चाहता, मैं आई एम नॉट सेटिस्फाइड। तो पंडित जी ने कहा क्या बनना चाहता है? तो कौवे ने कहा मुझे तो हंस बना दो, है कितना गोरा चिट्टा है, बड़े मजे से आराम से घूमता है फिरता है, कोई टेंशन नहीं है। तो पंडित जी ने कहा कि यार ठीक है, मैं तेरे को हंस बना दूंगा, लेकिन हंस बनाने से पहले तू एक बार हंस से मिल ले। अब कौवा गया हंस के साथ, हंस के पास गया और पंडित जी भी गए साथ में। हंस ने कहा मेरी लाइफ तो तेरे से भी ज्यादा खराब है। अब हंस ने क्या कहा? हंस ने कहा मैं तो, लोग बाग मेरे साथ फोटो खिंचवाते हैं, सब कुछ करवाते हैं, लेकिन जहां मैं इतना गोरा हूं पता ही नहीं चलता पानी कहां पर है और मैं कहां पर हूं। क्रोकोडाइल आता है, अचानक से झपट्टा मारता है, मेरी तो हालत खराब हो जाती है। मैं अपने आप को पानी में से ही बचाता हूं, तू कम से कम उड़ तो सकता है। हंस ने कहा जी सेटिस्फाइड तो मैं भी नहीं हूं अपनी लाइफ से। तो पंडित जी ने कहा अच्छा तुम भी सेटिस्फाइड नहीं हो, क्या बनना चाहते हो दोनों बता दो। उन्होंने कहा जी हम तो पैरट बनना चाहते हैं, हमें तो तोता बना दो। अब पंडित जी ने कहा ठीक है बना दूंगा, मुझे क्या दिक्कत है, मुझे तो बनाना है, एक जादू मंत्र फूकना है और मैं तेरे को तोता बना दूंगा। पंडित जी ने फिर एक टर्म्स एंड कंडीशन रख दी। अब वो क्या टर्म्स एंड कंडीशन थी? पहले तोते से मिलकर आओ। अब दोनों हंस और कौवा दोनों गए तोते के पास। पैरट कहता है मेरी क्या जिंदगी है, लोग अब मुझे कैद करके रखते हैं, मिट्ठू 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 बुलाते रहते हैं, मेरा कोई नाम ही नहीं होता, हर कोई मुझे मिट्ठू के नाम से बुला देता है, क्या जिंदगी है मेरी। खिलाते भी मुझे मिर्ची हैं और मुझे कैद करके रखते हैं, मैं तो हवा में उड़ भी नहीं सकता तेरी तरह, मैं तो खुली हवा ही नहीं ले सकता। अब वो भी परेशान, कौवा परेशान, हंस परेशान, और फिर सबसे लास्ट में पैरट भी परेशान। अब पैरट ने कहा कि अच्छा अब तुम तीनों परेशान हो, क्या हल निकालें? पैरट कहता है कि सर हल क्या निकालें, अब तो ये है कि हमें लगता है हमें बन जाना चाहिए पिकॉक। पंडित जी ने कहा मुझे क्या दिक्कत है, एक मंत्र फूकना है पिकॉक बना देंगे तेरे को। लेकिन फिर पंडित जी ने टर्म्स एंड कंडीशन रख दी। उन्होंने कहा पहले पिकॉक से मिलकर तो आओ। गए सब भागे भागे पिकॉक के पास। पिकॉक से जाके बोलते हैं कि यार तेरी लाइफ बड़ी अच्छी है, तेरा तो नाम भी नेशनल बर्ड है, और बारिश भी जब तू आती है लोग बाग तेरा नाच देखने के लिए कितना आराम से आते हैं, मतलब कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से हमें नाच देखने को मिल जाए, तेरी वजह से तो पूरा सब कुछ चलता है, इसलिए तुझे नाम दिया नेशनल बर्ड का। पिकॉक कहता है तुम्हें लग रहा है मुझे नेशनल बर्ड का नाम दिया है, लोग बाग तो मेरे फिन्स निकाल लेते हैं, मेरे जितने भी पर हैं उन सबको हटा देते हैं, स्नैच कर देते हैं और उनसे अपने लिए हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स बना देते हैं। तो क्या लाइफ है मेरी, क्या जिंदगी है मेरी। तो अल्टीमेटली पॉइंट इज कोई खुश नहीं है, कोई सेटिस्फाइड नहीं है। वो सेटिस्फेक्शन लेवल जिस दिन आ गया उस दिन आप जीना छोड़ सको, उस दिन आप काम करना छोड़ दोगे। उस सेटिस्फेक्शन वर्ड के पीछे मत भागो, एंड दैट्स व्हाट कुंग फू पांडा एंड तमाशा मूवी हैड टॉट अस। वर्क ऑन योर पैशन, don't do don't choose a course in the form of ship run,
दोस्त यहाँ जा रहा है हम भी यहाँ जाएंगे। अरे दोस्त की जो फीस थी वो तुम्हारी फीस भी दोस्त के पेरेंट्स देंगे क्या? यू नीड टू थिंक ऑफ योर ओन। थोड़ा अपनी अकल लगा के, डोंट गो विद दैट शिपरन काइंड ऑफ थिंग कि भाई आज इस दोस्त ने ऐसा किया तो हम भी यही करेंगे, इसने ऐसा किया तो हम भी ऐसे ही करेंगे। अभी बहुत सारे मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट मोर देन 2 वीक्स हो गए, आई वॉज अ पार्ट ऑफ वन ऑफ द वेबिनार एंड दैट इज विद जीसस एंड मैरी कॉलेज। एंड लाइक यू गाइस, जीसस एंड मैरी कॉलेज का क्राउड भी बहुत अच्छा होता है। उन्होंने मुझसे एक चीज़ पूछी कि और जीसस एंड मैरी में, आई होप यू आर अवेयर, देयर इज अ कोर्स इंग्लिश ऑनर्स। तो मैं इंग्लिश ऑनर्स के बच्चों को एड्रेस कर रहा था, और उस इंग्लिश ऑनर्स के कोर्स में मुझसे 2-3 बच्चों ने बड़े अच्छे बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछे। उन्होंने कहा सर हम अपना करियर ना कंटेंट राइटिंग में बनाना चाहते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। कहते हैं दैट्स आवर पैशन। सबसे लास्ट में एक बच्ची ने पूछा सर कंटेंट राइटिंग में तो पैसा ही नहीं है। मैंने कहा जिस चीज में पैसा है वो चीज करोगे? कहते हैं सर बताओ किस चीज में पैसा है। मैंने कहा सबसे अच्छा पैसा है नेटवर्किंग मार्केटिंग में, सबसे अच्छा पैसा है एमएलएम में, क्योंकि वहां पे तुम्हें फुल राइट मिलता है अपने चेक खुद से साइन करने का। करोगे? नहीं सर, कौन एमवे में जाकर जॉब करे, कौन मोदी की फ्रेंचाइजी ले, मोदी केयर में कौन जाके बेचेगा। मैंने कहा प्रॉब्लम्स कहाँ से आ गई? तुम तो भाग रहे थे पैसे के पीछे, सबसे ज्यादा पैसा तो वहीं पर ही है, वो तुम करना नहीं चाहते हो। सो द पॉइंट इज वर्क ऑन योर पैशन। अपने पैशन के ऊपर काम करो। इफ यू वांटेड टू बिकम अ आर्टिस्ट, बिकम अ आर्टिस्ट। लेकिन आर्टिस्ट बनना है तो टॉप 10 में रहना है आर्टिस्ट में। इफ यू वांटेड टू बिकम अ मोची, बिकम अ मोची। लेकिन मोची इंडिया में टॉप 10 में आऊंगा, उसके लिए भी बहुत इंस्टीट्यूशन है। तुमने एक इंस्टीट्यूशन का नाम सुना होगा, फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन, FDDI। क्या करते हैं? अगर किसी ग्रामीण बंदे से पूछो जो यूपी बिहार में रहता है, कहता है अरे भाई 4.5 लाख ले रहे हैं मोची बनाने के। ठीक है, यही किसी दिल्ली वाले पर्सन से पूछोगे, it's a very professional course, you can got place in one of the company like Relaxo, like Liberty। तो हर चीज को सोचने के दो तरीके हैं, आपको किस तरीके से सोचना है। एंड यहाँ पर बैठ के, यहाँ मैं जब भी आता हूँ ना विप्स में, और जब मुझे एड्रेस करने के लिए बोला जाता है, इनफैक्ट 3 years ago आई बीन टू दिस प्लेस, और मैंने इसी स्टूडियो में बैठकर सेशन लिया था, एंड इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस। मेरा जब भी मैं यहाँ आता हूँ, मेरा हमेशा मन करता है कि मैं भी जर्नलिज्म कर लेता, तो रोज ये हर दिन नया होता मेरा। हर दिन मैं सेलिब्रिटीज को इंटरव्यू करता। ये क्या न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ अब सुबह सुबह, यहाँ पे जो न्यूज़ जो मैं पढ़ता हूँ वो तो यही लोग बना रहे हैं, और स्टूडियो में देख के तो लगता है जन्नत है, इससे अच्छी तो कोई जगह ही नहीं है। एंड दैट्स व्हाट आई हैड आंसर्ड दैट पर्टिकुलर पर्सन। नैना नाम था उस गर्ल का, जीसस एंड मैरी कॉलेज की बच्ची थी, एंड उसने मेरे से यही क्वेश्चन पूछा कि सर कंटेंट राइटिंग में पैसा नहीं है। मैंने कहा बेटा पैसे के पीछे मत भाग, तेरा पैशन है ना, तू पैसा कमा लेगी। और कंटेंट राइटिंग, मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म एक ऐसा प्रोफेशन है, एक ऐसा करियर पाथ है जहां पर आप फिक्स तो कमाते हो, वेरिएबल में उससे भी ज्यादा कमाते हो, फ्रीलांस करके आप उससे भी ज्यादा कमाते हो। सो गो विद दैट पैशन। इनफैक्ट मैं यहाँ पर जब आया मुझे इतना अच्छा लगा, मैं आप सबको भी ये स्टूडियो दिखाना चाहता हूँ। सो आई विल रिक्वेस्ट वन ऑफ माई कलीग कि वो एक बार आपको इस स्टूडियो का एक राउंड लगाएं, आपको एक जनरल एक आउटलुक दे देंगे, और आपको एक ग्लिम्स मिल जाएगी एक्चुअली माहौल क्या होता है। सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमराज विद द बैकग्राउंड विप्स न्यूज, आपने पीछे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे विप्स न्यूज। जब आप इस चेयर पे बैठते हो ना, आप कहते हो ना दैट्स अ हॉट चेयर। ठीक है, जब आप केबीसी की चेयर पे बैठते हो तो क्या कहते हैं? यही कहते हैं ना कि एक बड़ी आलीशान जगह पे बैठे हैं, कुछ जीत के लेकर जाऊंगा यहाँ से। तो जब मैं आज यहाँ बैठा हूँ मुझे बड़ा प्राउड फीलिंग हो रही है, और मेरा ऑब्जेक्टिव बस एक है कि इस 1 घंटे के सेशन में आपको कुछ सिखा कर जाऊंगा, ऐसे ही नहीं जाऊंगा। तुम एग्जिट करते रहो, एग्जिट करते रहो, एग्जिट करते रहो, नए पार्टिसिपेंट्स आते रहेंगे, आते रहेंगे, आते रहेंगे, लेकिन कुछ यहाँ से रिटर्न में कुछ मिलना चाहिए। और वो क्या मिलेगा? ये 6 पॉइंट्स मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। इनफैक्ट अगर किसी ने ध्यान से सुना है तो क्या वो 6 पॉइंट्स कोई बता सकता है? रितु मैम आप ही बता दीजिए कौन से 6 पॉइंट्स थे वो।
सबसे पहला पॉइंट मैंने बताया था, कलेक्ट नॉलेज नॉट मार्क्स। पॉइंट नंबर 1। एनीवन? पॉइंट नंबर 2 अगर किसी ने लिखा हो तो। क्या था पॉइंट नंबर 2? Sir, may I? या प्लीज। Sir, skills. Develop skills. यस, कलेक्ट स्किल्स नॉट डिग्री। पॉइंट नंबर 3, एनी ऑफ यू? Sir, quality of friends, not quantity of friends. यस, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू कलेक्ट अ गुड क्वालिटी ऑफ फ्रेंड्स। क्वालिटी का मतलब ये नहीं है उसके पास बैकग्राउंड पे चले जाओ, उसके फैमिली मेंबर्स कैसे हैं, फादर एसीपी हैं, फादर एमएलए हैं, वहां से जुगाड़ निकलेगा, काम निकलेंगे, कोई नहीं आता काम। सो ट्राई टू कलेक्ट गुड फ्रेंड्स। ये 5000 फॉलोअर्स सब एक जगह हैं, जब काम की बारी आएगी कोई नहीं आएगा, वही आएगा जो आपका रियलिस्टिक फ्रेंड होगा। 4th पॉइंट क्या था? यस, Invest on yourself. yes, invest on yourself, invest on your health. Don't let your goal, don't let your entrepreneur dreams get shattered. वो टाइम की उसमें मत रहो कि जब पहले और पैसा आ जाएगा तब करूंगा, कंफर्ट जोन में मत जाना। व्हाट इज द 5th पॉइंट? पॉइंट नंबर 5। या Collect experience, not rewards. परफेक्ट, कलेक्ट एक्सपीरियंस नॉट रिवॉर्ड्स। रिवॉर्ड्स के पीछे मत भागो। इसमें स्टोरी बताई थी मैंने आपको दशरथ मांझी की। लोग बाग पागल कहेंगे तुम्हें, बातों पे ध्यान मत देना, अपने गोल पर, अपने लक्ष्य पे डटे रहना। यही एक स्किल सेट है अगर आगे एक्सेल करना है। लोगों की जेलसी है, आपको रोकेंगे, आपको परेशान करेंगे, बट परेशान मत होना, अपने गोल पर लगे रहना। लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 6। एनी ऑफ यू? पॉइंट नंबर 6, कलेक्ट पर्पस ऑफ योर लाइफ। अपने पैशन के पीछे भागो। जिस चीज के लिए आपका पैशन है, पैसे के पीछे अगेन मत भागो। लेकिन पैशन के पीछे भागने का मतलब ये नहीं है कि हम फिर भी उस पर काम नहीं कर रहे हैं। जो बंदा अपने पैशन पे काम करता है ना, वो पैशन के पीछे भागता है, वो ना दिन देखता है ना रात देखता है, उसको केवल पैशन होता है, धुन सवार होती है कि ये करना है। चाहे रात हो जाए चाहे दिन हो जाए, उसके लिए कभी रात नहीं होती, उसके लिए कभी 8-9 घंटे 8 घंटे 9 घंटे 5 घंटे की स्लीप नहीं होती। उसका दिन रात उसके माइंड में एक ही चीज दौड़ती है कि मुझे इसमें एक्सेल करना है और ये मेरा लक्ष्य है और मुझे इसी पे ही जाना है। तो यू नीड टू क्रिएट दैट फीलिंग इन योर सेल्फ। गिव अप मत करना कभी भी। ये 6 पॉइंट्स है। आई वुड रिक्वेस्ट वन ऑफ माई कैमरा पर्सन की अगर वो आपको पूरा एक स्टूडियो का राउंड दिखा सके। व्हाट अ वंडरफुल स्टूडियो। ट्रस्ट मी, जब ये देखता हूँ तो मन करता है लाइफ के काश थोड़ा टाइम पीछे जा सकता और यही प्रोग्राम करने की अगर अपॉर्चुनिटी कोई मुझे भी ये सब चीज़ें बता देता तो आज लाइफ कुछ और होती। बट येस, आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड फ्रॉम माई लाइफ। बट येस, ये एक ऐसी चीज़ है जो हर कोई चाहता है। हर कोई चाहता है पॉपुलैरिटी, हर कोई चाहता है हर दिन नया हो, हर कोई पर्सन चाहता है ग्लैमरस लाइफ। एंड दैट्स व्हाट that profession, that Vivekananda Institute of Mass Communication give you that lifestyle, that profession that give you that, आप कह सकते हो that pride कि आप पर डे बेसिस पे you be a part of that celebrity। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको लाइफ में फोकस करनी है। इनफैक्ट ड्यूरिंग द एंड ऑफ दिस सेशन, अब वी आर ऑलमोस्ट थ्रू विद द टाइम। मेरी जब कल बात हो रही थी प्रोफेसर मिश्रा जी से और रितु जी से, उन्होंने मुझे बहुत कुछ अच्छी चीज़ें बताई और कुछ ड्रॉबैक्स भी बताए, बहुत सारी चीज़ें बताई। एंड इसीलिए मैंने आज अपनी जो थीम थी, एक हमारा दुख दर्द होता है, वो होता है हमारा कोविड। कोविड हमारा आज की डेट में सबसे बड़ा दुख है और एक बच्चे के लिए सबसे बड़ा दुख है प्लेसमेंट। एक बच्चे के लिए सबसे बड़ा दुख है एक्सपोजर। मैं इसमें एक ही चीज़ कहूँगा, डोंट गेट डिसहार्टन। चीज़ें होती हैं, होकर चले जाती हैं, आपको कभी गिव अप नहीं करना है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं लाइफ में कि यू नीड टू अडेप्ट योर सेल्फ। आपको अपने आप को मोल्ड करना है, रोना नहीं है। रोने वाले को कोई नहीं पूछता। अगर आज तुम्हारे सामने मैं रोता हुआ आता, उदास चेहरा लेके आता, यार कैमरा नहीं चल रहा, यार एसी नहीं चल रहा, क्या इंस्टीट्यूशन है, क्या होगा, कैसे होगा, तुम में से कोई मेरे को नहीं सुनता। कहते हैं यार रोने वाली चीज़ को कौन सुनता है।
अब मैं हंसते हुए बैठा हूँ, एसी नहीं है, सेंट्रलाइज एसी नहीं चल रहा बिकॉज ऑफ कोविड, बट दैट इज समथिंग विच आई एम डूइंग, दैट्स माई पैशन, मैं वो कर रहा हूँ एंड आई एम एंजॉइंग माई सेल्फ, राइट? तो गो विद योर पैशन. अगेन कमिंग बैक to one of the most important part, especially for those who wanted to make their career in journalism. बहुत अच्छा institution है guys. Don't recently they had opened their doors for the post graduation program, जिसके लिए एक एग्जाम ये कंडक्ट कराते हैं. विप्स का अपना एग्जाम है which is known as WIMCAT. Get into it, take the information. आपका अपना कॉलेज है, आप खुद कॉलेज में जाएं, पता करें इसके बारे में. थोड़े दिन पहले मैं IMC में एक लेक्चर लेने गया था, मैं वहाँ के बच्चों से मिला, आज विप्सियंस से मिल रहा हूँ. और एक स्ट्रेंज बात बताऊँ, IMC में IMCians नहीं है. जब विप्स में आता हूँ तो वर्ड सुनने को मिलता है विप्सियंस, एक अलग ही फीलिंग आती है, ठीक है? तो एक लेगेसी वाली जो फीलिंग है ना, वो मैं वहाँ के स्टूडियो में बैठा, IMC के स्टूडियो में, आई हैव टॉक विद दोज स्टूडेंट्स, बट जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर मुझे नज़र आया पोस्ट ग्रेजुएशन में VIMC के, वो मुझे और कहीं नज़र नहीं आया. एंड ट्रस्ट मी, इट्स अ वंडरफुल प्रोफेशन. आप आएँ, आप कॉलेज विजिट करें, कॉलेजेस ओपन, आप सारे कॉलेज विजिट करें. मेरा अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस, आई एम शेयरिंग इनफैक्ट वेरी गुड रिलेशन विद द पीपल ऑफ AAFT, with the people of Mudra Institute of Mass Communication, with the people of VIMC, Vivekananda Institute of Mass Communication. But the tie-up which I heard, which I had seen on papers, the practical exposure, मुझे सबसे अच्छी बात लगी, आज की डेट में लोगों के पास पैसों की कमी है, राइट? बट अगर मुझे कोई ऐसी चीज़ मिले जहाँ पे मैं पढ़ते पढ़ते आई गॉट दैट प्रैक्टिकल एक्सपोजर, आई स्टार्ट अर्निंग मनी, तो आज की डेट में वो कोर्स मेरी प्रायोरिटी रहेगा. और मुझे थ्योरी नॉलेज नहीं चाहिए, वो तो मैंने बहुत ले ली. मुझे तो चाहिए प्रैक्टिकल एक्सपोजर. जो पर्सन, जो इंडिविजुअल, जो इंस्टीट्यूशन, जो संस्थान मुझे वो प्रैक्टिकल एक्सपोजर दिलवा सकता है, मुझे वहीं जाना है, ठीक है? और आज की पूरी थीम आप अगर पॉइंट्स देखो, कलेक्ट एक्सपीरियंसेस नॉट रिवॉर्ड्स, क्या कहता है? प्रैक्टिकल एक्सपोजर. कलेक्ट स्किल्स नॉट डिग्री, क्या कहता है? पैडमैन का एग्जाम्पल दिया था आपको, ठीक है? आज के दिन की एक और खास बात है, मेरे लिए भी है और आपके लिए भी होगी और जापान के लिए भी है, ठीक है? आज के दिन जापान ने चाइना को हराया था इन येलो सी, आज ही के दिन, एंड दैट इज इन द ईयर 1989, ठीक है? और मेरे लिए आज खुश होने की क्या बात है, ये मेरा 100th सेशन है. मैं बहुत सारे कॉलेजेस में जाता हूँ, आज मेरा ये 100th सेशन है, एंड दैट इज अ समथिंग अपॉर्चुनिटी जो विप्स ने मेरे को दी, एंड आई एम वेरी ग्लैड कि दे हैड गिवन मी अ स्टेज, दे हैड गिवन मी दैट अपॉर्चुनिटी कि मैं आपको कुछ बता सकूं, आपको कुछ समझा सकूं. और आई होप, आई पर्सनली बिलीव, यहाँ से कुछ ना कुछ साथ लेके ज़रूर जाओगे और आपको ये सेशन अच्छा लगेगा. रितु जी, आई एम एंड हियर, प्लीज. Thank you so much, Siddharth ji. Thank you so much. I think this session is very enlightening session for on career development for the current scenario, which is I personally feel is very important for today's time, today's student, जो कि बहुत impatient रहते हैं, जो आपने अभी बताया बच्चों को बहुत जल्दी disheartened हो जाते हैं चीजों को लेके. लेकिन हम लोग जो एफर्ट कर रहे हैं फॉर VIMC, जो हम लोगों ने इनिशिएट किया है, जो बच्चों की शिकायत रहती है प्लेसमेंट्स को लेके, विच एक्चुअली यू वाज टॉकिंग अबाउट. सो दिस इज व्हाट एक्चुअली VIMC इज प्रोवाइडिंग द प्लेसमेंट्स. In fact, one more thing Because which I wanted to focus, so sorry to no, not interrupt at you. all. जब हम प्लेसमेंट्स की बात करते हैं, मैंने जब मैम आपको अपना एग्जांपल दिया था, एक Yes, इंस्टीट्यूशन के लिए फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है. मैं that's true. इंस्टीट्यूशन में जाता हूँ और हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आप बच्चों में फ्लेक्सिबिलिटी रखोगे, अगर आप उनको अपॉर्चुनिटी देंगे, तो कहीं ना कहीं हर बच्चे में एक स्किल सेट है और वो बच्चा प्लेस हो जाएगा. बट काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी में मुझे एक ही प्रॉब्लम नज़र आती है, वो है कि उनके पास वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, क्योंकि दे आर बाउंड टू फॉलो द कोर्स एंड करिकुलम
from the university which they are affiliated to. तो अगर हम यहाँ पे विप्स भी बहुत सारी किसी ना किसी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड होगा, एज आईपी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, मैं एएफटी में गया, वो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, मैं और भी इंस्टीट्यूशन में गया, कोई ना कोई किसी ना किसी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, तभी वो आपको डिग्री डिप्लोमा प्रोग्राम दे रहे हैं. सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में करिकुलम इस टाइप से बनाया गया, बस पढ़ाते रहो पढ़ाते रहो पढ़ाते रहो, एग्जाम दो, एग्जाम में मार्क्स आ गए, डिग्री लो, जाओ. उसमें कहीं पर्सनालिटी, इन सब चीज़ों के बारे में कोई स्पेस ही नहीं दिया गया है. और कोविड ने उस पर, दैट इज अ सोने पर सुहागा, कोविड ने उस पर, और एक होता है ना, हम पहले ही जले हुए थे, उस पर नमक छिड़क दिया कोविड ने. तो वो हुआ है इन 2 सालों में. बट जब मुझे सिद्धार्थ सर ने बताया कि भाई इस प्रोग्राम में उनके पास कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी है, उन्हें कुछ नहीं देखना, उन्हें बस प्रैक्टिकल एक्सपोजर देना है और बस देना ही है, और यहाँ से वो ब्रांड एम्बेसडर निकालेंगे. एंड आई स्टिल रिमेंबर एक इवेंट होने वाला है 26-27 को. इनफैक्ट कल ही मेरे पास आपके कॉलेज से इनविटेशन आया है, VIMC से इनविटेशन आया है टू बी अ पार्ट ऑफ दैट. एंड द गुड पार्ट इज, उस इवेंट के लिए आप स्टूडेंट को भी अपॉर्चुनिटी दे रहे हो. जिस स्टूडेंट ने, आपका बैच अभी स्टार्ट नहीं हुआ, विच इज गोइंग टू बी स्टार्ट मोस्ट प्रोबेबली इन द मंथ ऑफ अक्टूबर ओनली, 25-24 अक्टूबर से आप बैच शुरू कर रहे हैं फॉर द पोस्ट ग्रेजुएशन. तो उन बच्चों को भी आप ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि वो एक प्रैक्टिकल हैंड ऑन एक्सपीरियंस मार्केट में जाके इंडस्ट्री के लोगों के साथ सीख सकें. ये चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगी. एंड आई अप्रिशिएट कि आपने इस टाइप का फ्लेक्सिबिलिटी के साथ इस टाइप का प्रोग्राम लॉन्च किया. एंड ऑफ कोर्स नो डाउट, बात करने से लगा कि यू आर गेटिंग अ वेरी गुड रिस्पॉन्स, और काफ़ी सारे विप्सियंस ने ही काफ़ी एक अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया. दैट्स इट मैम, प्लीज गो अहेड. मैं तो बोलता रहूंगा, लेकिन वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम, इट्स ऑलरेडी 4:29. Please. Yeah, that's very true. I just request all the students to go to visit the VIMC website. The last day to apply for the forms is 26 for WIMCAT. WIMCAT is basically the entrance exam for getting the admission in VIMC, which is actually initiated by and actually starting by Professor Siddharth Mishra sir, जिन्होंने ये इनिशिएट लेके शुरू किया VIMC. So इसके अंदर this is completely skill based, completely practical based. There is no theoretical knowledge you'll get from this course, क्योंकि वो ऑलरेडी आप लोगों के पास है, and that is why we are starting it on the post graduation level, because theoretical knowledge इतनी भी आपको मिलेनी होती है, वो graduation level पे you get it. So what will provide you is the practical thing. So this is what actually VIMC, there's so many things which बोलते रहे तो exactly as Siddharth said कि we are running short of time, and वो बोलने के लिए बहुत चीजें रहती हैं. So I don't want कि मैं बोल के आपको बताऊं. It's better you go visit the VIMC website, see the partners which actually collaborating with VIMC, from VIMC, that you go visit the site and see by yourself, and then come back to us. This is your campus, this is your college, and this is what actually we want to give you. And end of this course, you will definitely get placed, you will become a leader. जॉब की जरूरत नहीं पड़ेगी. You get a profile जो कि recruiters will come and ask you कि please join us. This is that. This is it, and this is by the words of these, I would like to end this session. Thank you, Siddharth, for here Thank to you, guide Ritik the ji. students. बहुत अच्छा लगा विप्स में आकर. And Thank you जब so भी विप्सन much. से बात करते हैं, it's always a very good experiences. Very good Yeah. crowd, wonderful crowd. And the way I like the most at VIPS कि the people who teach or the students, they are very much aware कि market में चल क्या रहा है. They keep on updating themselves. और ये चीज़ मुझे विप्सियंस की सबसे अच्छी लगती है कि they are keep on updating themselves day to day. कोई ना कोई कुछ कर रहा है, कोई कोई अपना खुद का कुछ प्लान कर रहा है, कोई कंटेंट राइटिंग में है. एंड दैट्स अ ब्यूटी ऑफ a particular institution, especially of the profession of journalism. Thank you. Thanks a lot. Thank you everyone. Thank you for being so patient and with us for this